Hello, students. Good morning. Now, welcome in our English class. Students, we were discussing our chapter 9, The Bond of Love, in which you learned about the foundation of affection between an animal and a human being. Narrator found a baby bear. He brought that bear in his home and gave that bear to his wife. His wife started to have so much affection with that baby bear, and when they left it in the zoo, at that time she felt too much sorrow due to the departure of that baby bear from her. In the same way, that baby bear also had so much sorrow in his heart, due to which he had started to eat less and his weight became less and less when that baby bear was there in the zoo. So, because of that reason, they had to bring that bear, whose name was Baba, again to their home, and that Baba was left on the island, which was prepared by them by digging a pit which was 7 feet deep and 6 feet wide. And on that island, that Baba, that baby bear, remained hour in the lap of narrator's wife. ये सब आपने सीखा कि किस तरह से उसकी पत्नी घंटों तक उस आइलैंड पर, जो उन्होंने अपने घर के आंगन में बनाया था, उस आइलैंड पर घंटों तक उस बेबी बियर को अपने गोद में लेटा कर बैठे रहते थे. तो ये था एक्चुअल में बॉन्ड ऑफ लव, फाउंडेशन ऑफ अफेक्शन. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर विच हैव बीन गिवन in this exercise. Now let's start. So these are some of the questions which you are watching on the screen. I read the first question. On 2 occasions, Bruno ate something that should not be eaten. What happened to him on this occasion? तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मैं बता देता हूँ. यहाँ बताया गया है कि ब्रूनो, जो बाबा बाद में उसका नाम रखा गया, वो 2 मौक़ों पर कुछ ना कुछ खा गया था. वो क्या खाया उसने, एक तो ये बताना है, दूसरा उसके साथ क्या हुआ ये बताना है. सो एट फर्स्ट ओकेजन we saw that Bruno, in form of Baba, which was the name of that baby bear, ate barium carbonate, which was one of a poisonous substance which was kept by narrator in his library to kill rats, because there were so many rats in his library and those rats were destroying whatever the books which were kept in the library. So due to that reason, he kept barium carbonate to kill the rats, so that those books which were being destroyed by the rats, by the mouse, those could be kept in safe position. And second occasion, Bruno, in form of Baba, drank 1 gallon of engine oil which was taken out
by narrator from his old car, but by drinking that engine oil, which was in black position at that time, Bruno didn't get any bad effects. But because of eating that barium carbonate which was eaten by him on first occasion, because of that reason he became so much affected, and due to that reason veterinary doctor had to be consulted by them, and that veterinary doctor treated that baby bear. उस बेबी बियर को वेटरनरी डॉक्टर ने ट्रीट किया। तो इसमें दो मौक़ों पर उसने कुछ खाया पिया था। पहला मौका था जब उस नरेटर ने अपनी लाइब्रेरी में चूहे मार दवा रखी थी, बेरियम कार्बोनेट नाम की, क्योंकि नरेटर की जो लाइब्रेरी थी उसमें चूहे घुसकर किताबों को डैमेज कर रहे थे, बुक्स को। लेकिन ये क्या नाम है, गलती से ये घूमता रहता था घर में हर जगह पर ब्रूनो। तो ब्रूनो जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचा तो वो बेरियम कार्बोनेट जो चूहे मार दवा चूहों को मारने के लिए रखी थी वो खा गया, और उसको खाने से ये क्या नाम है, पैरालाइज हो गया, इसको अधरंग लग गया। वो वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, वेटरनरी डॉक्टर को कंसल्ट किया गया, और तब वेटरनरी डॉक्टर ने बुक्स के अंदर सर्च करके बेरियम कार्बोनेट जो पॉइजनस सब्सटेंस था उसका ट्रीटमेंट ढूंढा, और उसको 2 इंजेक्शन दिए। एक इंजेक्शन में कोई असर नहीं हुआ बेरियम कार्बोनेट के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। फिर उसने एंटीडोट, यानी एंटीडोट होती है ऐसी दवा जो जहर को ख़त्म करती है, तो एंटीडोट की जैसे ही सेकंड जो है इंजेक्शन इंजेक्ट किया तो उसके बाद ब्रूनो को कुछ राहत की सांस मिली, वो थोड़ा सा मूवमेंट दिखाने लगा। और दूसरे मौके पर उसने नरेटर ने अपनी कार से इंजन ऑयल जो जिसको काला तेल बोलते हैं वो निकाला हुआ था लगभग 1 गैलन के करीब। तो वो 1 गैलन इंजन ऑयल को पी गया था। इंजन ऑयल क्या होता है, जो मोबिल ऑयल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए इंजन के पार्ट्स जब आप मतलब मूवमेंट करते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन को, उस घर्षण को, रगड़ को कम करने के लिए मोबिल ऑयल डाला जाता है, और वो मोबिल ऑयल 6-7 महीने बाद जितनी भी उसकी क्या नाम व्हीकल की मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो 2-4 महीने बाद भी, या कम व्हीकल चलता तो 6-7 महीने बाद भी, और कम चलता तो 1 साल बाद वो काला हो जाता है। उसको काला तेल बोलते हैं। उसको निकाल के फिर दोबारा नया मोबिल ऑयल डालना होता है। तो नरेटर ने जो इंजन ऑयल निकाला हुआ था 1 गैलन के करीब, उसको ये पी गया था ब्रूनो। हालांकि उसका बैड इफ़ेक्ट इतना कुछ नहीं हुआ उसको पीने से। तो ये चीज़ें उसने खाई और पी थी। ये क्या नाम, ब्रूनो जो नरेटर का बेबी बियर था। Second question, was Bruno a loving and playful pet? Why then did he have to be sent away? यहाँ 2 पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है, क्या ब्रूनो एक लविंग और प्लेफुल पेट था, मतलब जिसको बहुत ही प्यारा, और दूसरा कह सकते हैं प्लेफुल पेट का मतलब जो खेलना पसंद करता हो। और दूसरे पार्ट में है, अगर वो ऐसा था यानी प्लेफुल पेट था तो उसको वहाँ से नरेटर के घर से क्यों निकाला गया, क्यों ये जू के अंदर डाला गया उसको।
So we can say Bruno in form of Baba was a playful pet, and because of that reason we can say he was a loving creature. ब्रूनो जो है एक प्लेफुल कैट है, क्योंकि पैट है, पैट का मतलब पालतू जानवर। ये खेल पसंद है इसको, ब्रूनो को, और इसीलिए वो एक लविंग क्रिएचर है, बहुत ही प्यारा सा जीव है। कैसे हमें पता चलता है कि वो प्लेफुल पैट है? वो हमें इस बात से पता चलता है बिकॉज एट 2 or 3 ओकेजन वी सा दैट ही स्टार्टेड टू प्ले सम ट्रिक्स। फर्स्टली when someone called Bruno to aim at him or her, at that time he took out one of the stick and started to aim at with the help of that stick just like a gun। एक बंदूक की तरह, जैसे बंदूक से निशाना साधा जाता है, जैसे ही कोई उसको ये कहता था कि निशाना लगाओ, तो वो एक लकड़ी की छड़ी उठाता था और बंदूक की तरह दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसको तान देता था। तो वहाँ से पता चलता है कि वो प्लेफुल पैट है। दूसरा, when anyone called him to cradle the child, at the same time he took out another stick and started to cradle that stick in his arm, in his front legs, with the help of his front legs which he used as arms। यानी आगे की जो पाँव थे उन पाँव को वो बाजू के तरह इस्तेमाल करता था। पिछले पाँव को क्या नाम है, पाँव की तरह इस्तेमाल करता था, और आगे के पाँव को बाजुओं की तरह, हाथों की तरह इस्तेमाल करता था। तो जब कोई उसे हुक्म देता था कि आप बच्चे को खिलाओ, तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो वो एक दूसरी स्टिक निकाल लाता था, एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता था और उसको अपने आगे वाले पाँव, यानी जिनको बाजू के रूप में इस्तेमाल करता था, उनकी हेल्प से उनको झुलाना शुरू कर देता था। जैसे एक बड़ा व्यक्ति, मैच्योर पर्सन, किसी बच्चे को अपने बाहों में झुलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ही वॉज वेरी प्लेफुल पैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही बिकेम अ वेरी लविंग क्रिएचर फॉर नरेटर एंड हिज फैमिली मेम्बर। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट का आंसर और हमने देना है। सेकंड पार्ट जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें कहा गया कि अगर वो ऐसा था, वो लविंग क्रिएचर था और प्लेफुल पैट था, देन व्हाई ही हैड टू बी सेंट अवे इन द जू। उसको जू में क्यों भेजा गया? सो नाउ आफ्टर passing some month, the weight and size of that Bruno grew more and more, and because of that reason it became the question of security for the teenage children, because narrator and his tenant had so much anxiety about the safety of the children। नरेटर को और उसके किराएदार को, जो किराए पर रहते थे, उन लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा का सवाल था। अब ब्रूनो जो है, पहले वाला छोटा भालू का बच्चा नहीं रहा था। कई महीने गुजरने के बाद वो काफ़ी बड़ा हो गया था, साइज़ में काफ़ी भारी हो गया था, जिसके कारण किराएदार के जो छोटे बच्चे थे उनको उनकी सुरक्षा का क्वेश्चन पैदा होता था। इसलिए बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ब्रूनो was sent away from narrator's home and it was kept in the zoo।
फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की सुरक्षा के लिए इसको चिड़ियाघर में रखा गया और घर से निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड? सो it was decided by narrator's family that Bruno should be sent in zoo, and same thing was adopted by them, same thing was manipulated by them, and due to that manipulation Bruno was kept in the zoo. They wrote a letter to the curator of the zoo so that they could keep that creature in the zoo, and it was asked by them from the curator whether he wanted to keep a tame bear in the zoo. उन्होंने लेटर से पूछा क्यूरेटर से, क्यूरेटर मीन्स जू इंचार्ज, कि वो क्या नाम है, जू के अंदर एक टेम बियर पालतू भालू के बच्चे को रखना चाहता था कि नहीं। एंड द आंसर सेंट बाय हिम इन पॉजिटिव मैनर, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ब्रूनो वाज सेंट अवे इन द जू फ्रॉम देयर होम। और इस तरह से ब्रूनो को जो है घर से निकालकर केज की हेल्प से, पिंजरे की मदद से जू के अंदर छोड़ा गया। सो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन, एंड with the help of this third question, now your chapter is over, and next video we shall take up another lesson that may be from BI or whatever the second English book, that is English reader, that may be related from that book also. हो सकता है उस बुक से पिकअप कर लें, और हो सकता है इसी से नेक्स्ट चैप्टर कर लें, वो देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू। यू विल note down these question answer in your notebook and learn them.